how to write programs by using CSS. So today I'm going to start with chapter number 5, second last chapter, JavaScript. So, up to this you already learn all the static websites. Okay, HTML and CSS used to develop static website. So actually there are two types of websites. Static website is static website. If the content of the web page or website is fixed, then that website we can call it as a static website. Now, what are the content that will appear on the web page? If that content is fixed content, such type of website or web pages are called as static website. Page is going to change based on time, based on day, or something like that. Then we can call that website as a dynamic website. Depending on time, that page may get changed. At runtime, the content of the web page may websites are nothing but a dynamic websites. For static website, all the viewers throughout the world will view the same content of the website. For example, if a happen, that website can be accessed by multiple. A single website may be accessed by different clients to different cities, different countries. If the static website is there, all the clients will view or will get the same information, and that the web page is fixed information. State to state, country to country, same information. All the clients will get the same information. Such type of websites are. But suppose if the website is dynamic website, content that will appear on the web page may change. Okay. At runtime, the content of the web page may get changed. Such a content which is not fixed. Such a web page we can call it as a dynamic web page. Okay, and that's now, for example, for dynamic, suppose one website is dynamic website. What will happen then? If any client from India if access that website, the content may be displayed in either Marathi, Hindi, or English. Okay, but same website if it is accessed by Japanese person, the information that will appear on the web page may be in the Japanese language. Okay, so something like that. Content of the web page may runtime. So client कौन है कौन से country से website access कर रहा है, accordingly the content or language of the information may get changed. This is a good example of the dynamic websites. Second example is through dynamic websites, your client can or user site visitor can actually interact with the website. Okay, so whatever the form you fill while taking admission to in the college or while filling the examination form, that form is designed by using HTML, but enter through that form. That information process again it is given to the client. So for such processing, dynamic websites are required, not a static website. Actually, with dynamic website, user can directly interact with that particular website. Means user can give some sort of input to the website by filling the form. User can gain some or obtain some output from the website. Means user can directly interact with the website. Such type of website are also called as a dynamic websites. And then to develop a dynamic website, some scripting languages are required. Sir, कुछ लोग बाकी Here JavaScript is one of the scripting language. Okay, so we'll go through the website that will give information about JavaScript. Sir, कुछ लोग बाकी है join होने को lecture को. What? Students are not able to join. कुछ लोग बाकी है. Yes, sir.
hope you understood the difference between static and dynamic websites. Okay. Okay, so one of the website available javat.point.com where you can get soft copy notes of the JavaScript topic by topic. Okay. So here Java dynamic websites, and it is a client-side scripting language. Okay. What actually JavaScript is? JavaScript is client-side scripting language which is used to develop dynamic websites. So I already explained you the concept of dynamic website. So how you will identify whether the website is static website or dynamic website? So if the content, or for static website, the content of the web page is fixed. The content on the web page, what are the information that will appear on the web page? That content is fixed content. Okay. If several thousand clients access the same website, all several thousand clients or site visitor will get the same information. That information cannot be easily changed. Okay, such type of website we can call it as a static web page. Okay, where dynamic website will sort the content of the web time. That website we can call it as a dynamic websites. अगर suppose several thousand users साइट विजिट अगर साइट को विजिट कर रहे हैं, लेकिन हर एक यूजर्स को, हर एक साइट विजिटर को अलग अलग कंटेंट वेब पेज के ऊपर अपीयर हो रहा है सपोज, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डायनामिक वेबसाइट, बिकॉज हर एक यूजर के लिए, हर एक साइट विजिटर के लिए पहले डिसाइड हो रहा है कि कौन से यूजर को क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है. तो डायनामिकली इट इज डिसाइडेड एट रन टाइम कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीड टू बी डिस्प्लेड ऑन द यूजर्स वेब पेज. Such type of websites are dynamic websites. Not will view the same information. Information that will appear on the web page may get changed visitor to visitor. Such type of websites are nothing but a dynamic websites. Static web page का content क्या है? Fixed content है. इतने भी यूजर स्टैटिक वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, सब यूजर को एक ही इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन सबको मिलने वाला है. वेबसाइट हर एक यूजर को अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल सकती है. ठीक है. सो इंफॉर्मेशन नीड टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज एंड डिपेंड्स ऑन व्हिच accordingly the content will change from the web page. Such websites are nothing but a dynamic websites. ठीक है. And means actually you can interact with that particular website. User can interact with the website. User cannot interact with the static website in the sense कि user can give some input information to the website by filling the form. That information can be processed by the website. Again, some processing information can be given to the user as well as output. Such type of website is a good example of the dynamic websites. Okay. Like when you access Amazon website, okay, you can fill your details. Like you will enter your username, you will enter your information, username and password. Something processing occurs. Accordingly, you will be logged into your account. Information about your account at any time when you log in. So that is a good example of dynamic websites. Okay. Once you log in with your account, आपके वेब पेज के ऊपर सिर्फ आपके अकाउंट का इंफॉर्मेशन मिलेगा, दूसरे का अकाउंट की इंफॉर्मेशन थोड़ी मिलने वाला है. ठीक है. सो दैट इंफॉर्मेशन में बी डिफरेंट टू डिफरेंट यूजर्स. जिन्होंने लॉगिन किया उनका इंफॉर्मेशन वहां पे दिखेगा वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर. सो डायनामिक वेबसाइट, यूजर कैन इंटरेक्ट विद द वेबसाइट. यूजर ने पहले क्या दिया, उनका यूजर नेम क्या है, उनका लॉग पासवर्ड क्या है, पहले वेबसाइट को दिया, मींस समहाउ कि यूजर ने कुछ इनपुट दिया है. ठीक है. उसके बाद उसी यूजर का अकाउंट ओपन हुआ है, वेब पेज के ऊपर उसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा है. अभी Amazon तो एक ही वेबसाइट है, लेकिन करोड़ों लोग उसको यूज करें वेबसाइट को, लेकिन हर एक के वेब पेज के ऊपर अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रहा है. अलग जिन्होंने अकाउंट रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका अकाउंट लॉगिन किया, उनका इंफॉर्मेशन वेब पेज के ऊपर दिखने वाला है. वेबसाइट तो एक ही है, लेकिन वो डायनामिक वेबसाइट है. देखो. ठीक है. So user can actually interact with the dynamic websites, and such type of dynamic websites
can be developed by using scripting languages. Along with HTML, you are supposed to use scripting languages. Okay, no problem. Only by using pure HTML you can design static website. HTML is used to develop static websites only. Okay, if you want to develop dynamic websites along with HTML, you are supposed to use scripting languages. So there are different scripting languages are available like JavaScript and PHP. Okay, JavaScript is one of the scripting language which is used to develop dynamic website. PHP is another example of scripting language which is used to develop dynamic websites. So अभी तक आपको यहाँ पे पता चल गया कि डायनामिक वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको प्योर HTML के साथ और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करना होता है. ठीक है, what if you want to develop a dynamic websites, not only HTML, along with HTML you are supposed to use scripting languages. ठीक है, HTML is only और वेबसाइट. HTML से हम सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं कि वेब पेज के ऊपर वेब पेज कैसे दिखना चाहिए, वेब पेज के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इमेज डिस्प्ले करना है तो कहाँ पर इमेज डिस्प्ले करना है. ठीक है, टेबल डिस्प्ले करना है तो टेबल कहाँ पे डिस्प्ले करना है, कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है. We can only format the web page by using HTML. And that is nothing but a static web page. ठीक है, for HTML script is required. जैसे हम C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं उसी टाइप में आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा so that you can process on the web page and as a output of that program your web page become a dynamic web page. The content of that will appear on the web page that can be changed as a program then get executed. That script get executed. Accordingly we can decide what content to be displayed on the web page. Such type of websites are nothing but a dynamic website. Okay, so here JavaScript is one of the scripting language which is used to develop dynamic websites. So scripting languages दो टाइप्स के होते हैं. डायनामिक वेबसाइट डेवलप करने के लिए जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होता है वो दो टाइप के होते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इन दोनों में डिफरेंस है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर है तो वो कोड जो स्क्रिप्ट है वो क्लाइंट का ब्राउजर एग्जीक्यूट करता है. फॉर एग्जांपल हियर जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट. So assume that one of the website is developed by using JavaScript. What will happen? The code of that code of that JavaScript will get executed by the client machine, not by the server machine. ठीक है. For example, assume करो कि हमारे कॉलेज का वेबसाइट डायनामिक वेबसाइट है. Now just assume that कि वो वेबसाइट एक client side scripting language में JavaScript का यूज करके डेवलप किया. तो what will happen? Your college website is available on the web server. We don't know where that web server is. Okay, but when you access that website, and if that website is developed by using HTML and JavaScript, what will happen? JavaScript code, when you access the website, the JavaScript code that available on the web server, okay, web server does not execute that JavaScript code. That code is sent by server to the client machine. Client machine कौन सा, जिस मोबाइल फोन से या तो फिर जिस कंप्यूटर से आप कॉलेज का वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, that is your client machine. तो सर्वर से जावास्क्रिप्ट का कोड पहले क्लाइंट तक आएगा. क्लाइंट का ब्राउजर जो है वेब ब्राउजर गूगल क्रोम या तो फिर जो भी अपना ब्राउजर यूज कर रहे हैं, that browser will execute the code of JavaScript and accordingly output will be displayed on the web page. Accordingly the output will be displayed on the web page. Such type of scripting languages are client side scripting language. Here JavaScript is one of the client side scripting language which is used to develop dynamic website. Okay, so what if the website is developed by using HTML and JavaScript? No problem, I can develop the dynamic website. But as JavaScript is a client-side scripting language, whenever user access that website, server will send the code of JavaScript from server to the client machine. Client machine के पास वो कोड आएगा और client machine का जो भी एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन हो, वो ब्राउजर उस क्लाइंट उस जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करेगा. एंड अकॉर्डिंगली जो भी आउटपुट है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का वो आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा. Where on the other hand, some scripting languages are server-side scripting languages like PHP. You are supposed to learn this PHP in second year. ठीक है? To develop dynamic websites, PHP is used to develop dynamic websites. But PHP is a server-side scripting language.
means what? The whole entire code of PHP is executed by the server, not by the client machine. The code of the PHP is executed by the server machine, and accordingly the output of that program will be sent by server to the client machine, and accordingly you can view the content on the web page. Such type of programming languages or scripting languages are called as server side scripting language. आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि डायनामिक वेबसाइट अगर आपको डेवलप करना है, if you want to develop dynamic, तो बहुत टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, ठीक है। अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी अलग अलग टाइप की होती है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कौन सा है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मीन जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो ब्राउजर एग्जीक्यूट करता है, ना कि सर्वर एग्जीक्यूट करेगा। नो प्रॉब्लम, होल एंटायर वेबसाइट इज अवेलेबल ऑन द सर्वर, बट जावास्क्रिप्ट कोड which is used to develop dynamic website, that JavaScript code is executed by the client machine, not by the server machine. That's why such type of languages are called as client side scripting languages, and JavaScript is one of the client side scripting language. Okay, JavaScript is client side scripting language, which is, if anybody asks you what is JavaScript, what you are supposed to say? JavaScript is a scripting language which is used to, and JavaScript is a client side scripting language. Okay, so there are several features of JavaScript, like all popular web browsers support JavaScript as they provide built-in execution environment. All popular web browsers, देखो JavaScript पर कौन-कौन execute करता है? Client machine, client side scripting language है। So how client can access any website? If you, which application? Web browser, है ना? Web browser is an application which is used to access and view the website. अगर आपके पास वेब ब्राउजर ही नहीं है तो आप कौन सा भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। फीचर क्या है जावास्क्रिप्ट का? इज वन ऑफ द लैंग्वेज और वन ऑफ द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट is supported by all the popular web browsers. So चाहे आपका Google Chrome हो, तो Netscape, all these web browsers supports JavaScript, ठीक है। सपोर्ट मींस देखो पूरा JavaScript का कोड कौन एग्जीक्यूट करने वाला है? ब्राउजर एप्लीकेशन ने। अभी अगर एज्यूम करो कि ये जो मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ java.t.com, तो ये एज्यूम करो कि ये अगर डायनामिक वेबसाइट है तो वेबसाइट कहाँ पे अवेलेबल है? सर्वर के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन एज्यूम करो कि देखो हम ये जो वेब पेज अभी हम व्यू कर रहे हैं, अगर वो अगर डेवलप किया है तो ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? ये वेब ब्राउजर एप्लीकेशन। ये कोड कहाँ पर है? सर्वर पर है। इस वेबसाइट का प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कहाँ पर है? सर्वर पर है। लेकिन सर्वर ने क्या किया? मैंने जब ये वेबसाइट एक्सेस किया है, सर्वर ने जावास्क्रिप्ट का कोड इस मशीन को भेज दिया है, और इस मशीन का ये जो एप्लीकेशन है वेब ब्राउजर एप्लीकेशन गूगल क्रोम ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके यहाँ पर कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट एप्लीकेशन एग्जीक्यूट अ जावास्क्रिप्ट कोड एंड अकॉर्डिंगली द कंटेंट विल देन अपीयर ऑन द वेब पेज। लेकिन जो भी कंटेंट अपीयर होगा वेब पेज के ऊपर वो डायनामिक कंटेंट रहेगा, क्योंकि बिफोर डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑन द वेब पेज फर्स्ट सम सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट, some sort of program get execute। HTML के टैग्स तो हमको लिखना ही है। HTML के टैग्स सिर्फ इंफॉर्मेशन किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए उसके लिए HTML का यूज है, लेकिन एक्चुअली इंफॉर्मेशन क्या डिस्प्ले करना है उसके लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज होता है। क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, तो HTML अपना जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम पहले कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन है वो वेब पेज के ऊपर आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने मेरा यूजर नेम और पासवर्ड दिया है तो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड का कहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग होगा कि यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं। अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो ही मेरा अकाउंट का इन्फॉर्मेशन वेब पेज के ऊपर अपीयर होगा, सो दैट आई कैन व्यू दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट इज अ client side scripting language which is used to develop a dynamic website. These are the different features. All popular web browsers support JavaScript. JavaScript follow the syntax and structure of C programming language. तो बहुत से अभी देखो आपको सीखना क्या है कि JavaScript का कोड कैसे लिखना है। So JavaScript का कोड
लिखना इजी है। जैसे आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो उसी तरह से कुछ प्रोग्राम लिखना होता है आपको वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम क्यों लिखना है? क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है, अभी इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट नहीं करना है। HTML का यूज क्या है कि हम सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं कि हेडिंग अगर डिस्प्ले करना है तो कौन से कलर में होना चाहिए, कौन से साइज में होना चाहिए, वो HTML से हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन HTML का यूज करके कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया सपोज, तो कहीं ना कहीं आपका वेबसाइट पे आपका इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फर्स्ट नाम क्या है, आपका मिडिल नाम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है। somehow this information is somewhere processed, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। तो वेबसाइट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपीयर है उसको अगर प्रोसेसिंग करना है तो आपको प्योर HTML का यूज करके नहीं कर सकते। आपको एक वेब पेज के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो प्रोसेसिंग करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट उसमें से एक लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखता है मींस हमको सी प्रोग्रामिंग जैसे लिखते हैं उसी तरह से कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, है ना। जैसे कि आप while writing JavaScript code you can use if else, you can use while, do while loop, ठीक है, for loop, break statement, continue statement, ठीक है। such type of control structure you can use while writing the JavaScript code, and then by using that code you can process the information what will appear on the web page, ठीक है। hope you understood the difference between HTML and JavaScript। HTML का यूज क्या है कि हम सिर्फ वेब पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते मींस और HTML का यूज करके हम सिर्फ इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ पे, कौन से साइज में, कौन से कलर में डिस्प्ले करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर इमेज डिस्प्ले करना है तो इमेज कहाँ पे डिस्प्ले करना है, कौन से साइज में डिस्प्ले करना है, लाइक दिस, ठीक है। इन वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, लेकिन वेब पेज के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगर आपको प्रोसेस करना है तो आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत है, नॉट HTML, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। JavaScript is an object-oriented programming language that uses prototypes rather than using classes and inheritance. It is light-weighted and interpreted language. Interpreted language is JavaScript. It is case-sensitive language. So JavaScript is case-sensitive. देखो अभी HTML case-sensitive नहीं है, लेकिन JavaScript case-sensitive है, ठीक है। Like suppose while writing JavaScript code, you can use variables, you can declare variables, ठीक है। So capital A variable and small a variable, these are two different variables. JavaScript is case sensitive. अभी HTML में चलता है कि आप small case में टैग लिखो या तो फिर upper case में टैग लिखो, no effect, इसका कुछ आउटपुट के ऊपर इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो प्रोग्राम विल वर्क प्रॉपर्ली। पूरे के सारे HTML के टैग आप कैपिटल में टाइप कर सकते हो, स्मॉल केस में टाइप कर सकते हो, मिक्स मोड में भी टाइप कर सकते हो, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव है ही नहीं। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज, क्योंकि हमको स्क्रिप्ट लिखना है, प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम के कुछ रूल्स होते हैं वो हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट सेकंड लास्ट फीचर गिवन जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेबल इन सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज, मैक, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, नाउ विल गो थ्रू हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। Okay, so this is the way how you can write JavaScript code. Actually, there are 3 different locations where you can write JavaScript code. Okay, on next page, I'm going to explain you that concept. Okay. So देखो एक प्रोग्राम है यहाँ पे, HTML का प्रोग्राम है, आप HTML से सेव कर सकते हो, लेकिन उस HTML प्रोग्राम में आप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो इन बिटवीन स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग में आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो इस प्रोग्राम में हेडिंग सेक्शन यूज नहीं किया है, HTML हेड सेक्शन स्किप किया, उसके बाद डायरेक्टली बॉडी सेक्शन में क्या यूज किया है? पहले h2 टैग, h2 वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। सो अकॉर्डिंगली द आउटपुट
देखो यहाँ पे एज्यूम करो कि वेब पेज पे ऐसे कुछ आउटपुट लिखेगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट हेडिंग टू डिस्प्ले हुआ है। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखना है, मुझे स्क्रिप्ट लिखना है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, एक प्रोग्राम लिखना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट कोड यू कैन राइट इन द एचटीएमएल प्रोग्राम बिटवीन इन दिस स्क्रिप्ट टैग ओनली, ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। एक्चुअली देयर आर थ्री डिफरेंट लोकेशन वेयर यू कैन राइट द जावास्क्रिप्ट कोड। आपको समझना क्या है कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। एंड हियर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हियर वन ऑफ द स्टेटमेंट, इट इज लाइक जस्ट लाइक अ प्रिंटफ इन सी लैंग्वेज। जैसे हम सी लैंग्वेज में प्रिंटफ लिखते हैं, अगर कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है एज आउटपुट, यू राइट printf and you write message in double quote. Similarly, suppose if I want to display some sort of message on the web page, I can use this function document.write, and then in bracket display the message or type the message whatever you want to display on the web page. So hello JavaScript by JavaScript by Java, ठीक है। तो अगर प्रोग्राम रन किया तो देखो ये जो है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट इज द आउटपुट ऑफ द h2 टैग एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड। ये जो है जावास्क्रिप्ट का कोड से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। So there are actually three different locations where you can write a JavaScript code that I am going to explain you now. Am I audible, students? Is there any network issue? Yes or no? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे दिया है इंफॉर्मेशन। तो जावास्क्रिप्ट एग्जांपल इज इजी टू कोड। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स 3 places to put जावास्क्रिप्ट कोड। तो देखो देयर आर 3 different locations where you can write जावास्क्रिप्ट कोड। मेक श्योर दैट कि आपको जावास्क्रिप्ट का कोड जो है एचटीएमएल के प्रोग्राम में ही लिखना है। जैसे हम नॉर्मली एचटीएमएल का प्रोग्राम लिखते हैं ना, एचटीएमएल प्रोग्राम एंड होता है /html से, एचटीएमएल के अंदर बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन। इन द एचटीएमएल प्रोग्राम इटसेल्फ यू आर सपोज्ड टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। यू कैन आल्सो क्रिएट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। So I want to here show you ki what are the different 3 ways of writing JavaScript code. So there are 3 different places or ways of writing JavaScript code. First way is within the body tag. You can write JavaScript code within body tag. जो हमारा body section होता है HTML प्रोग्राम का, body section के अंदर आप JavaScript का कोड लिख सकते हैं under the script tag, ठीक है। Then second way है within the head tag. You can also write the JavaScript code in head section. हेड सेक्शन में भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। एंड थर्ड वे है कि यू कैन राइट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ओनली जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम यू कैन राइट इन सम अदर फाइल, एक्सटर्नल प्रोग्राम यू कैन राइट इन सम अदर फाइल, एंड बोथ द प्रोग्राम देन यू कैन लिंक, बोथ द फाइल यू कैन लिंक, ठीक है। जैसे हमने एक्सटर्नल सीएसएस में सीएसएस का फाइल हम लिंक किया है, उसी तरह जावास्क्रिप्ट का कोड हम सेपरेटली लिख सकते हैं फाइल के अंदर, सेपरेट फाइल, और वो फाइल हम एचटीएमएल प्रोग्राम को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। Like this, these are the 3 ways of writing JavaScript code. All 3 methods are explained here on this page. ये जो वेब पेज यहाँ पर तीनों मेथड का इलस्ट्रेशन दिया है कि तीनों मेथड को कैसे यूज करना है, ठीक है। So first we'll go to the first way in body section. How you can write JavaScript code in body section. ठीक है। तो body section में अगर आपको JavaScript का कोड लिखना है तो आपको कंपल्सरी स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग SCRIPT, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे, दैट कोड यू आर सपोज्ड टू राइट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है कि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो आउटपुट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, इफ एल्स कैसे यूज करना है, व्हाइल डू व्हाइल फॉर लूप कैसे यूज करना है, तो पहले सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका यूज करके आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, लेकिन वो कोड कहाँ पे लिखना है? अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है बॉडी सेक्शन में, तो बॉडी सेक्शन में आपको एक टैग यूज करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग विद वन एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट अंडरस्कोर ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नहीं यूज किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। दिस एट्रीब्यूट जस्ट स्पेसिफाई फॉलोइंग इज द
जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम की स्क्रिप्ट के अंदर हम प्रोग्राम लिखने वाले वो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, वो स्पेसिफाई करने के लिए एट्रीब्यूट को यूज करना होता है। स्किप किया तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑलवेज इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू स्पेसिफाई कि व्हिच टाइप ऑफ स्क्रिप्ट कोड appear on the script tag. So जावास्क्रिप्ट का कोड हमको लिख रहे हैं यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट का कोड। So type is equal to हमको स्पेसिफाई करना है text oblique जावास्क्रिप्ट, ठीक है। And then you can write here the code, जावास्क्रिप्ट का कोड आपको यहाँ पे लिखना है। So simply यहाँ पे क्या किया है, मुझे assume करो कि मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, सॉरी वेब पेज के ऊपर। जावास्क्रिप्ट इज सिंपल लैंग्वेज फॉर जावा पॉइंट लर्नर्स, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरह से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, मेरा HTML का प्रोग्राम। HTML प्रोग्राम आपको HTML का प्रोग्राम ही लिखना है और ये प्रोग्राम .html से ही सेव करना है, ठीक है। जो जब जैसे हमने प्रोग्राम लिखे अब तक HTML के प्रोग्राम, उसी तरह से प्रोग्राम लिखना है, लेकिन चेंज क्या है यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट का कोड आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। सो HTML का प्रोग्राम बॉडी सेक्शन में मुझे एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। This is actual code. Document.write is a standard function which is used to display message on the web page. So मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले करना है वेब पेज के ऊपर। JavaScript is a simple language for Java point learners. So जो भी मैसेज टाइप करना है टाइप करो डबल कोट के अंदर, सेमीकोलन, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ JavaScript कोड एंड विद सेमीकोलन। अभी देखो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। HTML में क्या होता था कि हम सेमीकोलन नहीं देते, लेकिन अभी यहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शन को एंड में हमको सेमीकोलन देना है, क्योंकि ये प्रोग्राम है अभी, ठीक है। मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ द JavaScript कोड एंड विद सेमीकोलन। तो मुझे सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करना था, ठीक है। तो जैसे सी लैंग्वेज में अगर मुझे आपको कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले करना है, तो आप प्रोग्राम लिखोगे। प्रिंट में लिखना पड़ेगा आपको, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रिंट एफ इन केस ऑफ व्हाट यू आर सपोज्ड टू यूज, document.write फिर ब्रैकेट के अंदर मैसेज, सिंपली मैं राइट द मैसेज व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग बस इतना ही स्क्रिप्ट का टैग है। तो आपका कोड लिखने के बाद आपको स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना है, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज होगा, उसके बाद HTML का प्रोग्राम रन किया तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या रहेगा। सिंपली देखो ये वेब पेज है, तो यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंपल लैंग्वेज फॉर जावा बाय लर्नर्स। So this is the first way. This illustrates how you can write, where you can write the JavaScript code. ठीक है, अभी अपन डिटेल में पढ़ना है पूरा जावास्क्रिप्ट क्या वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, पूरा डिटेल में सीखना है। लेकिन आपको सिर्फ अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे और कैसे लिखना है, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोड आप बॉडी सेक्शन में लिख सकते हो, बॉडी पार्ट में, लेकिन स्क्रिप्ट टैग के अंदर। देन सेकंड वे, so here document.write function is used to display dynamic content through the JavaScript, ठीक है। अभी जो कंटेंट अपीयर हो रहा है डायनामिकली रन टाइम पे अपीयर हो रहा है कि क्या डिस्प्ले करना है यहाँ पे मैसेज, ठीक है। सो व्हाटएवर द मैसेज यू टाइप हियर दैट विल गेट डिस्प्लेड। देखो अभी जो मैंने टाइप किया है display. Then second way, you can write JavaScript code in the heading section. Three places to put JavaScript code: between the body tag. Second way होता है between the head tag. अब देखो ये और एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, बॉडी टैग के अंदर आप लिख सकते हो JavaScript का कोड, HTML बॉडी सेक्शन में आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। अभी जावास्क्रिप्ट कोड में एक ही इंस्ट्रक्शन लिखा है अलर्ट। अलर्ट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले अलर्ट बॉक्स। देखिए जैसे कि अगर मैंने ईच एंड टाइम व्हेन आई एक्सेस द वेबसाइट अलर्ट बॉक्स विल बी डिस्प्लेड एंड ऑन द अलर्ट बॉक्स द मैसेज हेलो जावा टी पॉइंट ऐसे डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई रिफ्रेश द वेब पेज, देखो दिस इज द अलर्ट बॉक्स, दिस इज अलर्ट बॉक्स विद वन बटन ओके। तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है हेलो जावा टी पॉइंट। तो जो भी मैसेज आप यहाँ पे डिस्प्ले करोगे वो डिस्प्ले होगा अलर्ट बॉक्स में।
hello Java T point. ठीक है, इस वेबसाइट पे पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाया है, तो यू कैन आल्सो रेफर दिस वेबसाइट javatpoint.com for JavaScript notes. Then second way, you can write the code, JavaScript code in head tag. Head tag के बीच में भी आप JavaScript का कोड लिख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, ये प्रोग्राम में इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। वो प्रोग्राम का पर्पस क्या है, ठीक है। HTML हेड सेक्शन में आप कोड लिख सकते हो, जैसे कि स्क्रिप्ट टैग, एंड ऑफ स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे ये जो है वो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, ठीक है। सो व्हाइल राइटिंग द जावास्क्रिप्ट कोड, कांसेप्ट ऑफ फंक्शन इज यूज्ड। जैसे हम C# में फंक्शन लिखते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, वैसे कुछ फंक्शन लिखा है। तो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं बाद में हमको डिटेल में पढ़ना है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन कीवर्ड यूज करना होता है पहले, फंक्शन FUNCTION, and then specify the function name. So MSG is the name of the function. फंक्शन का नाम क्या है, दिया है MSG, ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट में आपको फंक्शन लिखना होता है। तो फंक्शन में मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, अलर्ट हेलो जावा टी पॉइंट, ठीक है। तो ये तो एक फंक्शन है, तो मैं जब भी ये फंक्शन को कॉल करूंगा तो एक अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, ऐसे उसका मीनिंग है। मैंने कॉल दिस फंक्शन MSG, alert box will get displayed along with the message hello java t point, ठीक है। तो स्क्रिप्ट यहाँ पे हो गया खत्म। देन हेड सेक्शन भी खत्म करना पड़ेगा, ये एंड करना पड़ेगा, क्योंकि हेड सेक्शन सेकंड वे हम यूज कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ पे लिखना है, हेडिंग सेक्शन में। तो हेड सेक्शन में आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है, ठीक है। बॉडी टैग, देन देखो बॉडी टैग में पहले क्या है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो अगर ये मैंने प्रोग्राम रन किया सपोज, ठीक है, बॉडी टैग में के लिए पहले क्या है, पैराग्राफ है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो अकॉर्डिंगली दैट पैराग्राफ इज डिस्प्लेड, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन क्या करेगा कि एक बटन, एक्शन बटन वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक, तो उसके ऊपर क्लिक नाम का कैप्शन आ जाएगा। एंड एक एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप का, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ऑन क्लिक से क्या होगा कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन फंक्शन MSG विल गेट एग्जीक्यूट। तो फंक्शन MSG हमने कहां पर लिखा है, जावास्क्रिप्ट कोड में लिखा है। फंक्शन का नाम देखो MSG, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, हेलो जावा टी पॉइंट SMS डिस्प्ले होगा अलर्ट बॉक्स। देखो अभी ये प्रोग्राम मैंने रन किया है, ये वेब पेज भी इंफॉर्मेशन आउटपुट आ रहा है, लेकिन क्या अभी अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, नहीं। तो देखो डायनामिक वेबसाइट का कंटेंट क्या है कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तब जाके ये आ रहा है। अभी डायनामिकली रन टाइम पे आ रहा है ये, और रन टाइम पे क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, हेलो जी जावा टी पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया वो। So whenever I click on this button, that task will get performed, displaying the alert box. Alert box display होने का टास्क परफॉर्म होगा। तो देखो ऐसे हम स्क्रिप्ट से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। This is not possible in HTML. HTML में पॉसिबल ही नहीं कि हम ऐसे अलर्ट बॉक्स वगैरह डिस्प्ले करें along with some messages. ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट या तो फिर PHP में पॉसिबल है। कुछ इस तरह का कोड हमको बाद में लिखना है। देखो यहाँ पे सिर्फ सेकंड वे हमको समझना है कि सेकंड मेथड ऑफ राइटिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को कहाँ पे लिखना है, हेड सेक्शन में भी आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख सकते हो। हेड सेक्शन में, हेड सेक्शन में लिखना है तो कहाँ पे लिखना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे क्या लिखा है, एक फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन किया है। तो फंक्शन को उससे डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन कीवर्ड यूज करके, फंक्शन एंड फंक्शन का नाम। तो फंक्शन कीवर्ड है जैसे फंक्शन का नाम है MSG, और ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट में उस फंक्शन का कोड लिखा है। तो फंक्शन में सिर्फ एक ही मैसेज, एक ही इंस्ट्रक्शन लिखा है, अलर्ट। अलर्ट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द अलर्ट बॉक्स, और व्हेन दैट अलर्ट बॉक्स डिस्प्लेड व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड, हेलो जावा टी पॉइंट। एंड ऑफ द स्क्रिप्ट, एंड ऑफ द हेड। देन बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन में हमने क्या किया, एक फॉर्म डिस्प्ले किया है। फॉर्म के ऊपर एक बटन है, एक्शन बटन। एक्शन बटन को कैसे डिस्प्ले किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन विल पुट वन एक्शन बटन ऑन द वेब पेज। उसका वैल्यू क्या है, क्लिक। तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक चेंज किया, क्लिक मी, तो क्लिक मी आएगा उस
ठीक है, जो आप यहाँ पे दोगे वैल्यू, वो वैल्यू वहां पे अपेयर होगा क्लिक में। लेकिन क्लिक होने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो क्लिक जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैसेज एमएचजी फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कैसे कर रहे हो, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट उसके ऑन क्लिक इज इक्वल टू मींस इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, तो एमएचजी फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन नेवर गेट कॉल्ड। तो मुझे फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। सो ऑन क्लिक इज इक्वल टू सिर्फ मैंने फंक्शन का नाम लिखा एमएचजी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इस बटन के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो एमएचजी फंक्शन कॉल होगा। एमएचजी फंक्शन कॉल हुआ तो उसमें जो भी टास्क आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है वो टास्क पूरा होने वाला है। तो फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ लिखा कि अलग बॉक्स डिस्प्ले करो और मैसेज डिस्प्ले करो हेलो जावा टी पॉइंट। ठीक है, एंड थर्ड वे इज यू कैन राइट द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इन एक्सटर्नल फाइल। मींस एचटीएमएल का प्रोग्राम आप सेपरेट लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम सेपरेट लिख सकते हो। That is given on the next slide. External JavaScript file. So we can create external JavaScript file and embed it in many HTML pages. It provides code reusability because single JavaScript file can be used several HTML pages. So JavaScript code you can write only once, you can store in a file. ठीक है, but that file you must store with .js extension, JavaScript .js। ठीक है, जैसे CSS का फाइल आप .css से स्टोर करते हो, उसी तरह अगर आपको सिर्फ JavaScript का कोड स्टोर करना है फाइल के अंदर तो आपको वो फाइल .js एक्सटेंशन से सेव करना पड़ेगा। You can give any name to the file, but the extension must be .js, like abc.js, pqr.js। Store JavaScript program in .js file and then you can link that JS file with any HTML program। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ऐसे करो कि ये कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड इतना ही लिखा है। आप नोटपैड में भी टाइप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, नोटपैड में लिखो। तो मैंने क्या किया है, नोटपैड में सिर्फ एक फंक्शन लिखा है। फंक्शन का नाम क्या है, MSG। ठीक है, और ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट में उस फंक्शन का कोड लिखा है। तो जब भी ये फंक्शन में कॉल करने वाला हो MSG तो क्या होगा, एक अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा और अलर्ट बॉक्स में क्या डिस्प्ले होने वाला है, हेलो जावा टी पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम, ये जो फाइल है वो सेपरेटली message.js में स्टोर किया है। एज्यूम करो कि ये फाइल कोड कहां पे स्टोर किया है, message.js फाइल में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड सेपरेटली लिखो, उसके बाद आप HTML का प्रोग्राम लिख सकते हो। नॉर्मल हम जो HTML का प्रोग्राम लिखते हैं वैसे, लाइक HTML। हेड सेक्शन में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हेड सेक्शन में वो जो हमारा फाइल है जावास्क्रिप्ट वाला फाइल, उसके साथ आपको ये HTML प्रोग्राम लिंक करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट के अंदर आपको उतना ही लिखना है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट src सोर्स फाइल, सोर्स स्क्रिप्ट फाइल का यहाँ पे आपको नाम देना है message.js। स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देना है इन आवर रेगुलर प्रोग्राम एज इट इज। तो वही ये प्रोग्राम है, पहले एक मैसेज डिस्प्ले होगा वेब ब्राउज़र के ऊपर, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। उसके बाद एक एक्शन बटन डिस्प्ले होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन से एक्शन बटन डिस्प्ले होगा। ठीक है, और उस एक्शन बटन के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो MSG फंक्शन कॉल होगा। MSG फंक्शन कहां पर है, तो सोर्स फाइल हमने ऑलरेडी लिंक किया है message.js फाइल, तो उसमें से जावास्क्रिप्ट में हमने जो मैसेज फंक्शन लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन में क्या लिखा है कि अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले करो, तो अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। Any doubt up to this? Where we can write JavaScript code?
अभी जावास्क्रिप्ट पूरा डिटेल में सीखना है कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, हाउ टू राइट कमेंट, पूरा डिटेल में सीखना है। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जावास्क्रिप्ट का कोड आप कहाँ लिख सकते हो। ठीक है, पहले तो आपने सीख लिया कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट डायनामिक वेबसाइट डेवलप करने के लिए यूज होता है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड क्लाइंट वाला ब्राउजर एग्जीक्यूट करता है। और जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ लिख सकते हैं? तो देयर आर 3 डिफरेंट लोकेशंस वेयर यू कैन राइट द जावास्क्रिप्ट कोड। फर्स्ट लोकेशन इज इनसाइड द बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, लेकिन आपको जहां पर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है उस पार्ट को स्क्रिप्ट टैग के अंदर एनक्लोज करना है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल एचटीएमएल प्रोग्राम में जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है तो पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन करो। स्क्रिप्ट टैग ओपन करने के बाद जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दो। बॉडी सेक्शन में आप कहीं पर भी कितने बार भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आना चाहिए। स्क्रिप्ट टैग के बाहर जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं आ सकता। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड इज यू कैन राइट जावास्क्रिप्ट कोड इन हेड सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, हेड सेक्शन में। ठीक है, लेकिन हेड सेक्शन में कैसे लिखना है कोड? अंडर स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग, क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग, उसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। और तीसरा वे है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड दूसरी फाइल में स्टोर करो, सेव दैट फाइल विद .js एक्सटेंशन, और फिर नॉर्मल एचटीएमएल का प्रोग्राम जो भी आप लिखोगे उस एचटीएमएल प्रोग्राम को आप लिंक कर सकते हो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के साथ, लाइक दिस। और वो कहाँ पे लिखना है? हेडिंग सेक्शन में लिखना है, लाइक दिस। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने एज्यूम करो कि मैंने message.js में स्टोर किया है, तो जब मैं सेपरेट एचटीएमएल का प्रोग्राम लिखूंगा और उसमें अगर मुझे उस एचटीएमएल प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के साथ लिंक करना है, so that I can develop the dynamic web page, then link your HTML program with that source file, not that JavaScript file, by using this syntax: script, then type is equal to text oblique JavaScript, then src introduce करना है, src is equal to message.js, then write your code as it is. Any doubts, students, up to this? Any doubt, yes or no? No, sir. No, sir. Okay. Then we'll continue with the next topic, JavaScript comment. So here we'll discuss about how to write JavaScript comment. Comment आपका concept पता है? Comments are only used to give additional information about the program. Comments are never executed by the compiler or interpreter. ठीक है, C language में भी आपने बहुत कमेंट्स लिखा है, कमेंट्स प्रोग्राम लिखते समय आपने कमेंट्स का यूज किया है, उसी तरह आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते समय कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। कमेंट्स आर स्किप्ड बाय द इंटरप्रेटर, सो दैट कमेंट्स में आपने जो लिखा है वो वेब पेज के ऊपर अपीयर नहीं होगा। ठीक है, सो द जावास्क्रिप्ट कमेंट्स आर मीनिंगफुल वे टू डिलीवर मैसेजेस। It is used to add information about the code, warnings or suggestions so that end user can easily interpret the code. कोड के बारे में हेल्प देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए हम कमेंट लिखते हैं। एज्यूम करो कि मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, मैं प्रोग्रामर हूँ, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम मैंने लिखा है, लेकिन दूसरे प्रोग्रामर को जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, व्हाइल लूप का यूज क्यों किया है, फॉर लूप का यूज क्यों किया है, उसके लिए मैं कमेंट दे सकता हूँ। प्रोग्राम के अंदर मैं कमेंट्स लिखता हूँ, लेकिन वो कमेंट्स अपीयर नहीं होते वेब पेज के ऊपर। देखो यहाँ पे दिया द जावास्क्रिप्ट कमेंट्स इज इग्नोर्ड बाय द जावास्क्रिप्ट इंजन एंड एम्बेडेड इन द ब्राउजर, दैट इज। ठीक है, कमेंट्स एम्बेड नहीं होते ब्राउजर के ऊपर। Now there are two types of comment that you can write in JavaScript program: single line comment and multi line comment. जो C language में हम जैसे कमेंट लिखते हैं उसी तरह आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखना है? सिंगल लाइन कमेंट ऑफ JavaScript start with double forward slash. लाइक देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है स्क्रिप्ट, अभी देखो ये पूरा ये हो गया जावास्क्रिप्ट कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन दो इंस्ट्रक्शन है, दो में से पहला इंस्ट्रक्शन क्या है?
कमेंट है, क्योंकि कमेंट बिगिंस विद डबल फॉरवर्ड स्लैश। वो एक इंटरप्रेटर क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट इसको स्किप कर देगा। बस एक ही स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये प्रोग्राम अगर रन किया तो हेलो जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले हो रहा है ड्यू टू दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये तो स्किप किया है, कमेंट है। इट इज अ सिंगल लाइन कमेंट, एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन। So this is the way how you can write single line comment in JavaScript. कहीं पर भी कितने बार भी आप कमेंट लिख सकते हो। JavaScript टैग के अंदर आप कितने बार भी कमेंट लिख सकते हो। कमेंट को कैसे लिखना है, सिंगल लाइन कमेंट। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट। अगर मुझे और एक कमेंट लिखना है तो मुझे प्रोग्राम कैसे लिखना है, सपोज दिस इज अनदर कमेंट, सो डबल स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकंड कमेंट। एरर नहीं है अभी स्क्रिप्ट टैग के अंदर। प्रोग्राम रन किया तो कुछ एरर नहीं आएगा, दोनों कमेंट है। लेकिन अगर मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से सपोज डबल स्लैश तो कुछ एरर आ सकता है। ठीक है, देखो अभी आउटपुट बराबर नहीं डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज के ऊपर। ये जो है ना हेलो जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कुछ भी मिस्टेक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड में हमको रूल के हिसाब से लिखना है, ऐसे कैसे कुछ भी टाइप नहीं कर सकते स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, each and every instruction must end with semicolon। ठीक है, एक्चुअली दिस इज मीनिंगलेस इंस्ट्रक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। मीनिंगलेस इंस्ट्रक्शन हो गया अभी ये। So that's why no output is displayed on the web page। देखो अभी कुछ आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कमेंट ही रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे गलत है। अभी रॉन्ग करेक्ट हो गया प्रोग्राम। अगर मैंने रन किया तो क्या आउटपुट आ रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट। सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट आल्सो यू कैन राइट। मल्टी लाइन कमेंट जैसे हम सी लैंग्वेज मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं बाय यूजिंग स्लैश स्टार स्टार स्लैश का यूज करके, उसी तरह आप मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हो। लाइक दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग स्लैश स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये देखो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट लिखा है, दो लाइन का कमेंट लिखा है यहाँ पर। इट इज मल्टी लाइन कमेंट, इट विल नॉट बी डिस्प्लेड। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट ऐसे लिख सकते हो। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो मैसेज वो डिस्प्ले होगा वेब पेज के ऊपर एज आउटपुट। रन किया प्रोग्राम तो देखो एग्जांपल ऑफ जावा विद मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, okay, so today we'll stop here. In next lecture we'll discuss with JavaScript variables, how we can declare JavaScript variables and so on. ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, so today we'll stop here students. So do you have any doubt up to this? No sir. Okay. So you can go to this website ना, अगर आपको आगे का कुछ अगर सीखना है तो आज मेरा मींस आप कंटिन्यू कर सकते हो। सिर्फ java.t.com पे जाओ, जावास्क्रिप्ट लोकेट करो और इस वेबसाइट के सारे अभी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताया है। जैसे कि देखो अगर हम देखो अभी इतने सारा, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट ना, उसमें से सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको एज अ चैप्टर दिया है, एक सिंगल चैप्टर दिया है आपके सिलेबस में। एक्चुअली सेपरेट सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, जावास्क्रिप्ट पूरा एक सब्जेक्ट है टोटल। ठीक है, तो उसमें जो हमको क्या क्या सीखना है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स भी है, इफ स्टेटमेंट, स्विच, लूप, फंक्शन, बस इतना ही हमारे सिलेबस में है। ये नीचे का कुछ भी नहीं सिलेबस में। ठीक है, क्योंकि एक ही चैप्टर आपको दिया है, इंक्लूड किया है सिलेबस में जावास्क्रिप्ट वाला। एक्चुअली दिस इज अ सेपरेट सब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड टू डेवलप द डायनामिक वेबसाइट। तो ये सब्जेक्ट आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो आप इस वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपके सिलेबस में इतना इंक्लूड किया कि एटलीस्ट आप डायनामिक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। नेक्स्ट लेक्चर का लिंक आया है इस ग्रुप पे।
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll stop here. In next lecture we'll discuss about remaining concept of JavaScript. Till then, bye students. Leave the meeting and join the next lecture.